subscriber. I have millions of subscriber. I have millions of subscriber. हेलो I am गाइस, everyday वेलकम daily बैक टू योर manifestation फेवरेट coach. I am यूट्यूब everyday चैनल। manifestation coach. आपके I am अपने everyday फेवरेट यूट्यूब manifestation चैनल coach. Everyday face ड्रीम smile लाइफ positive energy मैनिफेस्टेड and में real आपका goals. Every day स्वागत see है। smile smile और positive अगर energy. किसी ने अभी तक I am भी not बेल famous. I am आइकन को favorite ऑन YouTuber. नहीं I am किया most है तो famous. I am प्लीज़ favorite मेरे चैनल YouTuber. को I am most सब्सक्राइब famous कर and लीजिए favorite YouTuber. ताकि Every day आपको I got 100 नोटिफिकेशन new टाइम टू subscriber. टाइम मिलते Every day रहे। I got 100 new तो subscriber. आज मैं Every day एक I got 100 new एक प्यारी subscriber. सी I am सक्सेस fully स्टोरी लेके YouTube आई हूँ monetized. मेरी क्लाइंट की। I am fully YouTube monetized. एक्चुअली I am fully YouTube monetized. I always उसका get काफ़ी टाइम से एक compliment and एग्ज़ाम है feedback ना, वो about नहीं my निकल रहा था। video. वो I उसका always कोई get कॉलेज एग्ज़ाम compliment था and और feedback बार about my बार उस video. एग्ज़ाम I में उसकी always get सप्ली आ positive रही थी। compliment and feedback अब about my उस टाइम में video. हुआ क्या तो था आप कि बैग वो नीचे बुक लड़की मेरे सेशन को विद मी, मतलब फिर आप विथ मी बैग कम्प्लीटली नीचे बुक सेशन उसके विद मी, मैंने फिर आप विथ लिमिटिंग मी बिलीफ बैग नीचे बुक देखे सेशन विद मी। और उसके साथ एवरी में डे क्या 100 क्या people प्रॉब्लम come है book the session with me और every वो day. सब Every मैंने day 100 चीज़ें people अच्छे book से session with me. एनालाइज की। Every day उससे hundreds बात of people करके book session तो with मेरे me. को पता चला My कि client उसको are so प्रॉब्लम किस satisfied किस book चीज़ में session आ with me. रही My है। client are literally उसका मेन so प्रॉब्लम satisfied with me. My एक्चुअली जो client था are so satisfied with me वो and they उसका give मतलब positive एसपी compliments का about प्रॉब्लम my था session. They मेनली, give positive और compliments जिसकी about my वजह से session. वो I ना am किसी everyday और काम पे subscriber. फोकस I नहीं have कर पा millions रही of थी, अपनी subscriber. पढ़ाई I पे, have अपनी millions of हेल्थ पे subscriber. और I am सब everyday करियर life वगैरह पे manifestation वो coach. I am everyday फोकस famous नहीं कर life पा रहे थे। manifestation coach. I am क्योंकि everyday famous उसको manifestation बैक coach. टू बैक Every या फिर minute I बैकग्राउंड multiply में my energy सिर्फ and my goals. एसपी Every ही minute के I थॉट्स आते थे। multiply my energy. अब इस केस I में am क्या most था famous and कि favorite उसकी YouTuber. जो I am करियर most था ना famous वो काफ़ी and ज़्यादा favorite डाउन होता YouTuber. जा I रहा am most था। famous and favorite तो YouTuber. वो Every day I 24 got घंटे 100 new मतलब उसको subscriber. Every मैनिफेस्ट day I करने got में 100 लगी new रहती। subscriber. बट उसका Every जो day I got करियर था 100 new वो डाउन subscriber. I जा am रहा fully था और उसके YouTube उसमें ना monetized. पेपर भी अच्छे नहीं I am हुए। fully YouTube तो उसने monetized. मेरे I am को fully ऐसे YouTube बताया कि monetized. I मतलब क्या always कुछ get है, तो उसमें ना positive क्या compliment and उसकी feedback बैक लग about गई थी। my मतलब video. वो जो I लड़की always है get positive compliment and उनके feedback about कॉलेज my में ना video. ये सीन I है, always अगर get positive पेपर पास ना compliment हो and ना feedback तो about बैक my लग जाती है, सिक्स video. मंथ की बैक फिर लग आप बैग जाती है। नीचे बुक सेशन विद मी, फिर आप तो विथ मी फिर बैग उसमें नीचे ना बुक आगे सेशन विद जैसे मी, फिर आप हम लिटरली बैग आगे नीचे अगली बुक क्लास सेशन में विद नहीं मी. बैठ पाते, तो Every ऐसा day कुछ सीन 100 of होता है people उसमें। book the तो session फिर with उस me every जो क्लाइंट single है day मेरी, 100 of उन्होंने people book बताया the session with me. कि मैम Every day मतलब ऐसे ऐसे hundreds of मेरा people पेपर book हुआ the था session with me. और My मेरा client पेपर are मतलब so अच्छा गया satisfied था book उस session with टाइम me. पर, My बट मेरे को client are मतलब literally उम्मीद थी कि मैं so पास हो जाऊंगी satisfied with अच्छे me. My नंबर से। clients are so satisfied with उसने me पहले and भी they give मतलब कभी positive लॉ ऑफ compliment अट्रैक्शन टेक्निक about वगैरह my यूज़ session. की, They always give तो वो positive मतलब compliments कॉन्फिडेंट about थे my कि हाँ session. मैं पास हो जाऊंगी। I have बट millions of क्या subscriber. हुआ I have कि millions of subscriber. उसको I am मतलब वो everyday एक पेपर favorite में रह manifestation गई, coach. I am कोई everyday रीज़न favorite से वो एक पेपर manifestation में coach. रह I am गई। everyday और favorite उसने बताया manifestation कि दी coach. मतलब My मेरे को happiness ना increase ऐसे with my रिजल्ट से energy and my रिलेटेड goals. Happiness increase इनसिक्योरिटीज़ by आती my थी by my और इस emotion. कारण मैं I मतलब am most पेपर में famous रह and गई। favorite YouTuber. I तो am most फिर उसके famous बाद क्या हुआ, and उसका favorite रिजल्ट आ गया, YouTuber. तो I am उसने most नेक्स्ट famous and favorite YouTuber. पेपर के Every लिए day मतलब I सप्ली got के 100 एग्ज़ाम new के लिए ना subscriber. Every प्रिपरेशन day I शुरू got कर दी। 100 new अब subscriber. उसके पास सिर्फ है Every ना day I एक got से 100 new डेढ़ महीना subscriber. था। I am fully अब YouTube उस केस में monetized. एक से डेढ़ महीना I था, am fully उसका YouTube पेपर है ना monetized. I दिसंबर am में fully होना था। YouTube monetized. I तो फिर always उस get लड़की ने ना positive प्रिपरेशन शुरू compliment कर and दी, उसकी feedback तैयारी भी about हो my गई। उसका video. जो I सिलेबस था always get वो positive feedback मतलब and हो feedback गया। about my और video. सेकंड चीज़, I जिस always सब्जेक्ट का get उसका पेपर था positive ना, तो हर compliment and इंसान feedback उस about सब्जेक्ट my के बारे में video. एक ही People बात give me to बोलता book था session with me. People are कि literally इसका beg me पेपर to book बहुत session with me. डिफ़िकल्ट People are आता है literally या beg फिर me इस to book सब्जेक्ट में session with बहुत me. सप्ली देते हैं, Every day बस 100 of इसी में people पास हो जाओ, book बहुत the बड़ी session बात with है। me. और उस Every लड़की का single day जो 100 of सप्ली आई people थी book ना, the उसी session with सब्जेक्ट me. में आई थी। Every day अब हुआ hundreds क्या, of उस people लड़की book ने ना session with me. तैयारी की, My बट client are उसके so साथ प्रॉब्लम satisfied ये थी book कि session वो with me. अपनी My पढ़ाई पे फोकस client नहीं are कर पा रही literally थी, so क्योंकि satisfied with me. बार My client बार are क्या so हो रहा था satisfied with me कि and they give positive नेगेटिव compliments थॉट्स आ रहे थे। about my session. They और always जो give अपने positive एसपी को compliments लेके वो about my काफ़ी ज़्यादा session. परेशान थी। तो I उसके have बैकग्राउंड millions में of थॉट्स subscriber. चलते थे, I तो have millions of मतलब इसकी subscriber. वजह से वो I am पढ़ाई पे मन नहीं everyday लगा life पाती थी। manifestation coach. बट I am जैसे भी everyday मतलब life उसने करके manifestation coach. I am अपने everyday पेपर के लिए life तैयार manifestation किया, coach. बट I am जब everyday बात life उसकी आती है तो वो manifestation मतलब
खुद को पे कंट्रोल नहीं कर पाती, मतलब उसका क्या लॉस हो रहा है, उस लड़की को ना होश नहीं रहता बिल्कुल भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका एग्ज़ाम का डे आ गया और वह अपना एग्ज़ाम देने के लिए गई। उस पेपर में उसे सब कुछ आ रहा था। मैंने उससे डिटेल में पूछा कि क्या कुछ हुआ, तो उस लड़की को पेपर में ना सब कुछ आता था, मतलब जो उसने पढ़ा था सारा वही कंटेंट था और उसको बहुत अच्छे से याद था। बट वो जैसे ही पेपर में बैठी ना, तो उसके दिमाग में उसकी जो एसपी की जो फ़ोटोज़ है ना, मतलब एसपी की जो बातें हैं फ़ोटोज़, वो घूमने लगी। अब उस केस में मतलब क्या हुआ कि वो लड़की लिख नहीं पाई पेपर में, मतलब जो उसको याद था तो वो ब्लैंक होने लगी। उसको याद था बट उसी सेम टाइम पे उसकी जो एसपी है उसकी मेमोरीज बार बार मतलब दिमाग में आ रही थी। उस स्ट्रेस में उस लड़की ने अपना पेपर दे दिया। उसका पेपर हालांकि इतना अच्छा नहीं हुआ, सब्जेक्ट वो बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना होता है, बट उसने वो नहीं किया अच्छे से अटैम्प्ट।
सिंपल सी बात है। और कंप्लीट भी नहीं हुआ। और जिस हिसाब से उसने नंबर वगैरह जोड़े, जिस हिसाब से उसने अटैम्प्ट किया ना, तो वो श्योर थी इस बारे में कि अब की बार भी मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उसकी फिर 6 मंथ बैक लग जाएगी। वो ऑलरेडी उस काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। उसके बैचमेट, उसके क्लासमेट सारे पास आउट होके जा चुके थे। अब इस सिनेरियो में हुआ क्या, वो अफर्म मतलब उसका थोड़ा रिजल्ट भी लेट आया। वो अफर्म कर रही थी कि नहीं, हर चीज़ मेरे फेवर में होती है, मैं अपने पेपर में पास हूँ, मैं अपने पेपर में पास हूँ, मैं अच्छे पेपर में। हाँ, उस टाइम पे कुछ अफर्मेशंस वगैरह मैंने दी थी कि क्या कुछ आपको बोलना है। तो अब पेपर हुआ दिसंबर की 27 या 28 को हुआ था उनका पेपर। उसके बाद में काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी वे, बट उनसे वो चीज़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर वो अपने पेपर के लिए फॉर्म करे तो उसको लगता था कि मेरा एसपी रह जाएगा, कहीं वो किसी और के साथ ना चला जाए, ऐसा मतलब। तो इस कारण वो एसपी पे ज़्यादा फोकस करती थी, अपने पेपर के लिए फॉर्म नहीं करती, या फिर मतलब पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखती थी उसके बारे में। हालांकि उसको पता है कि ये इसके लिए लास्ट चांस है, और पेपर भी अच्छा नहीं गया। और जो ये जो सब्जेक्ट था उसका, वो भी काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है। तो अब इस केस में हुआ क्या कि मतलब वो अफ़र्म अपने एसपी के लिए करती थी, बट वो बार बार मतलब कॉलिंग वगैरह उसकी आ जाती थी, लेकिन फिर बाद में दिमाग उस लड़के का ख़राब हो जाता। अब फिर वो लड़की ना मेरे पास आई और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। लेकिन उस टाइम वो बोल रही थी कि दी, मेरा रिज़ल्ट है ना अभी आने ही वाला है, इस केस में ना मतलब मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको समझाया कि कैसे क्या कुछ चीज़ें ट्राई करनी है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे खुद के साथ में सेल्फ टॉक करनी है और तुम्हें मतलब उस चीज़ एंड पॉइंट पे बने रहना है। तो उसने मेरे को मेरी बात हुई तो वो अफर्म कर रही थी, बीच में उसने छोड़ दिया था, फिर उसने दोबारा अफर्म किया। फिर उसके लास्ट टाइम पे ना 2-3 दिन पहले मतलब रिज़ल्ट आने ही वाला था कि हाँ, कि मतलब कल ही आएगा, कल परसों ही आएगा, ऐसा परसों। तो उस लड़की ने फिर दोबारा मुझसे बातें की कि दी, ऐसे ऐसे ना रिज़ल्ट परसों आने कह रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, ऑलरेडी रिज़ल्ट ना लेट हो चुका है, तो अभी मैं मतलब क्या करूं। तो मैंने कहा कि देखो, तुम अपनी एसपी से फोकस तो बिल्कुल ही हटा लो, अभी 2 दिन के लिए तो बिल्कुल हटा लो, अगर तुम्हारा तीसरे दिन रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम सेल्फ टॉक करो और ऐसे अफर्म करो माइंडलेसली। अगर तुम बैठ के नहीं कर पा रही हो, तुम रोबोटिकली करो, ठीक है। तो मैंने उसको टास्क दिया, और उस लड़की ने क्या किया, उस दिन वेदर भी काफ़ी ख़राब था भाई, मतलब उस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में एफर्ट लगाए ऐसा डेडिकेशन हर किसी में नहीं होता। तो माइंडलेसली वो 3 घंटे लगातार अफर्म करते, नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत मैं पास हूँ, अरे मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, लेकिन मुझे एग्ज़ाम में हमेशा नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये मेरी दुनिया है। यहाँ मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, टीचर के पास में फ्री विल नहीं है, मतलब ऐसी कुछ अफर्मेशंस मैंने दी थी। और वो अपना, जैसे हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, ऐसे वो उसको ना रिपीट पे बोलती जा रही थी। और फिर उसने पहले ये सेल्फ टॉक वगैरह की, जिससे थोड़ा माइंड को रियल वाली फीलिंग आने लगी। फिर उसके बाद में मैंने उसको कुछ अफर्मेशंस दी थी, जिसको सिर्फ मतलब 1 या 2 ही अफर्मेशन, जिससे वो बार बार रिपीट कर रही थी। और उससे हुआ क्या उसने ना उस टाइम पे ना ग्रुप में कुछ मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, वो बता रही थी। तो उसने किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया रिज़ल्ट के बारे में, कि बच्चे पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट। बट उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि देखो, तुम्हारा रिज़ल्ट आ चुका है, अगर रिज़ल्ट के बारे में कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उस पर ध्यान देना ही नहीं, ना किसी को रिप्लाई करना है। और उसने ये चीज़ें भी वो सेल्फ टॉक में ऐड करवाई थी मैंने, कि कौन उसे कैसे क्या बता रहा है, कि रिज़ल्ट कैसे आया है, कैसे उसे पता चला है, मतलब एवरी सिंगल थिंग। और फिर उसने सोचा कि ठीक है, मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं पास हुआ, मैं परसों से ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरा आज है ना, मेरी ड्रेस मतलब क्लीन नहीं है, तो मैं कल है ना क्लीन करूँगी ड्रेस, और मैं परसों ही मतलब अपना ज्वाइन करूँगी, ऐसा, ठीक है। और उसने ये सिनेरियो इमेजिन किया, और उसके साथ में क्या किया, उसने अफर्म भी किया था कि मेरे को ये पर्सन मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे कंग्रेचुलेशन कह रहा है, या फिर मतलब ऐसे मेरे को रिजल्ट पता चला। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9 बज गए थे, और 9 बजे के अराउंड तुम जो मेरी क्लाइंट थी ना, वो बाहर थी, काम कर रही थी, और उसका फ़ोन अंदर था।
अंदर था तो अंदर आके देखा तो उसने ना उसके टेक्स्ट मैसेज थे जिसकी फ्रेंड है कि कॉन्ग्रेचुलेशन डियर यू आर पास इन योर एग्ज़ाम और दो तीन लड़कियों के वो थे और उसके साथ में एक लड़की कॉल आई हुई थी। और जो मेरी क्लाइंट जो अपना रिज़ल्ट देख के जो हैरान हुई ना, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। देन उसने अपनी फ्रेंड के पास में ना कॉल किया और उसने ना बताया कि मतलब वो कितनी मतलब खुश है इस रिज़ल्ट से। और फिर उसने मेरे पास कॉल किया कि दी थैंक यू सो मच, मतलब जैसा मैंने सोचा था ना एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मेरी एक फ्रेंड है वो हिसार पता नहीं कहाँ हिसार की बता रही थी, वो हिसार साइड से है। और मैंने सोचा था कि मुझे रिज़ल्ट के बारे में नहीं पता, वही मेरे को बता रही है रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट आ गया है और वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही है, वो मेरे पास कॉल कर रही है। तो ऐसा ही हुआ, मैं बाहर थी तो उसने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उसने कॉल किया तो मैंने नहीं उठाया, तो मैंने बाद में उठाया। ऐसा सेकंड एक और लड़की के बारे में किया था, उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। तो मतलब एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे मतलब उसने विजुलाइज़ किया था, उसने बोला था और जैसे मैंने बताया था ना एग्जैक्टली। बट उस टाइम पे क्या है, उस के माइंड में ना बैक टू बैक और भी लाइफ की प्रॉब्लम थी ना, वो भी चल रही थी। बस मैंने कहा कि तुम है ना 2 दिन तुम्हारा रिजल्ट आने वाला, 2-3 दिन और चीज़ों को छोड़ो, सिर्फ अपने रिजल्ट पे फोकस करो। और मेरी जो क्लाइंट है उसने मेरी बात सुनी भी, मतलब अगर मैंने कहा है तो उसने फॉलो ज़रूर किया, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो उस चीज़ को किया। और वो जो माइंडलेसली वो कर रही थी ना, रोबोटिकली अफर्म कर रही थी, बोल रही थी, टॉक कर रही थी, तो उससे उसको मतलब वो कह रही थी कि दी मैंने पता है कैसे किया, मेरे सर में भी इतना ज़्यादा दर्द हो गया बट मैं फिर भी लगी हुई थी, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं, मैं अपने एग्ज़ाम में पास हूँ, मैं पास हूँ, मैं पास हूँ, मैं अपनी पोस्टिंग पे जा रही हूँ, मैं पास हूँ, मतलब ऐसा। उसने उसको मतलब लगातार सिर उसका ऐसे हो गया था फटने को, सिर दर्द हो गया था, लेकिन नेक्स्ट डे ही उसका रिज़ल्ट आ गया। अब ये जो देखो अभी उसका रिज़ल्ट उसके फेवर में आ गया है ना। उसने अफर्म किया, ऐसा विजुअलाइज़ किया हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी जैसे मैंने बताया कि उसका सिर दर्द करने लग गया हूँ, है ना। लेकिन देखो नॉर्मली है ना सिर दर्द नहीं करता, अफर्म वगैरह करते हैं, बात होता क्या है, ऐसी दिक्कतें ना उसी पर्सन को आती है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, या फिर हमारा दिमाग किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो, मतलब किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा हो और हम उसको खींच के लेके आए और हम कहें ये नहीं, ये करो इस टाइम पे, ठीक है। मतलब उसका जो दिमाग था उसके अपने एसपी पे जा रहा था बार बार, उसके पीछे पागल थी वो। बट उसने उधर से हटा के वो बार बार अपने एग्ज़ाम पे लेके आ रही थी, तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब फोर्स थोड़ा बहुत खुद के साथ में कर रही थी वो। तो इस केस में उसको तो हल्का फुल्का मतलब ऐसे सिर में दर्द हुआ। तो अगर वो मैंने उसको एक्चुअली मेडिटेशन के लिए भी बोला था, बट वो उससे होता ही नहीं था। मैंने उसको काफ़ी टाइम बोला था, तो वो उसका बिजी शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा था, तो वो मतलब उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। वो बोली कि दी मैं ना अफर्म कर सकती हूँ, स्क्रिप्टिंग कर सकती हूँ, तो मैं ये चीज़ें ट्राई करूँ। मैं ठीक है ओके, अकॉर्डिंग टू योर विल। तो फिर उसने ऐसे ही किया और उसके साथ उसका रिज़ल्ट आ गया, जो कि वो लड़की बहुत हैरान थी, बहुत। उसकी आवाज़ में मैं वो चीज़ें सुन सकती थी कि जिस टाइम उसने मेरे पास कॉल किया, मुझे बताया कि उसका रिज़ल्ट कैसे क्या कुछ आया और ये सब हुआ। हाँ, इसके साथ में मैं एक छोटी सी बात बताना आपको भूल गई हूँ। जब उस लड़की का रिज़ल्ट आया था ना, तो उसे 3-4 दिन पहले उस लड़की को ना सपना आया कि वो इस बार भी उसी सब्जेक्ट में फेल हो गई, ठीक है। लेकिन जो पिछली बार उसका रिज़ल्ट आया था ना, इससे पिछली बार जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी उसको ऐसे तब तो उसके अच्छे पेपर गए थे, ऐसे ही सपना आया था 2 दिन पहले कि वो इस सब्जेक्ट में पास हो गई, लेकिन सॉरी फेल हो गई। तो हुआ क्या कि वो उसी सब्जेक्ट में फेल हो गई, सेम जो सपना आया था ना उसी सब्जेक्ट में वो फेल हो गई वो लड़की। तो इस केस में उसको ना थोड़ा डर बन गया कि भाई कहीं अब की बार भी ये चीज़ें मेरे पास साथ रिपीट ना हो जाए। तो फिर अब की बार भी उसको इस साथ में यही हुआ कि सपना आ गया था 3-4 दिन पहले रिजल्ट आने से। अब इस केस में वो थोड़ी डर गई थी,
तो उसने मेरे पास कॉल किया, फिर दोबारा से मतलब थोड़ा सपोर्ट सिस्टम उसने मेरे से लिया। मैंने उसको सपोर्ट किया, उसको गाइड किया प्रॉपरली, और देन उसके बाद उसको रिज़ल्ट मिल गया। और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शोर थी कि नहीं दी, मेरे ना सपने हमेशा सच होते हैं, हमेशा मेरे सपने सच होते हैं, मतलब इस बार भी मेरा सपना ज़रूर सच होगा। मतलब वो उस लड़की के अंदर वो डर बना हुआ था, मतलब वो सपने वाला जो डर था ना वो बना हुआ था, और साइड बाय साइड कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही थी। इस कारण वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही थी एक्चुअली। अदरवाइज़ उसमें डेडिकेशन बहुत था। उसने कर दिखाया और वो अपने रिज़ल्ट में पास हो गई। तो एक बहुत मुझसे प्यारी सी सक्सेस स्टोरी ये आपके सामने मैंने रखी है मेरे क्लाइंट की। तो आप कुछ भी चाहते हो ना वो आपको लाइफ में ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो आपके लिए ही है ना। जब हम किसी चीज़ को ही सोचते हैं कि नहीं नहीं होगा ये चीज़, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज़ आपने मान लिया तो वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने उसके लिए हार मान लिया। और अपनी डिक्शनरी से नो वर्ड्स हटा दो अपना, मतलब तुम्हारे लिए हर चीज़ पॉसिबल है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जो तुम चाहते हो ना तुम्हें लाइफ में वो मिल जाएगा। वो तुम्हारे लिए ही बना है। अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग विल रखो कि चाहिए तो चाहिए। मैं किसी को फ्री विल अपनी लाइफ में नहीं दूंगी, बट हमेशा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि हम अपने उसके चक्कर में किसी और को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दें। मतलब ये सिर्फ मैं अपनी प्योरिटी, जो सोल प्योरिटी, उसके लिए कह रही हूँ। मैं आपको कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं दे रही हूँ कि आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। बट मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि बस अपनी प्योरिटी वो चीज़ मेंटेन रहे। इसके साथ में मेरे पास एक बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है एसपी से रिलेटेड, वो फिर मैं आपको आगे शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस सक्सेस स्टोरी। और ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, पता है जब हमारा हार्ड टाइम चल रहा होता ना, जब हमें ये होता है कि नहीं यार चीज़ें काम नहीं करती, तो उस टाइम पे ये जो सक्सेस स्टोरी है ना एक मोटिवेशन का काम करती है, एक अंदर से एक उम्मीद जगाती है कि नहीं, इस पर्सन की अगर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है तो मेरी क्यों नहीं, तो मतलब मेरी भी होगी ऐसा। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ना कहीं जो माइंड नेगेटिव लूप में दोबारा चला जाता है, या फिर ये मान लेता है कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पर ये जो सक्सेस स्टोरी है ना ये हमें वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और दोबारा से एक विश्वास दिलाती है, खुद पर ट्रस्ट, खुद पर बिलीव सिस्टम बिल्डअप होता है कि नहीं हम करेंगे, मतलब दोबारा गिर के वो उठने वाली चीज़ हो जाती है। तो सक्सेस स्टोरी का मतलब काफ़ी मतलब रोल होता है कि हमें ये लगता है कि सच में ये चीज़ें काम करती ना करती है नहीं करती हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि आप है ना ट्राई करो, एक्चुअली ट्राई करो, है ना, इस चीज़ सच में काम करती है कि नहीं करती है। इस चीज़ में मैंने ना टाइम बहुत ज़्यादा लगाया है, बहुत बहुत मैंने पता नहीं क्या कुछ किया है, बट मेरे को मैं समझ गई कि कैसे क्या चीज़ें काम करती है प्रॉपरली, किस तरीके से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया जाता है, और वो आपकी फेवर में उसे होना ही होना है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। और ये एग्ज़ाम बहुत छोटे हैं, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बना के रखो, अपने आप को सोचो कि यही, अरे ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजीली क्रैक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ामिनर के पास में फ्री विल है ही नहीं, उसके पास में 0.5% भी फ्री विल नहीं है। जैसा मैं सोचती हूँ सिर्फ वैसा ही होता है, जैसा मैं चाहती हूँ सिर्फ हर चीज़ें मेरे फेवर में काम करती है। मेरा टीचर, मैं पेपर कंप्लीट करूँ चाहे ना करूँ, मेरा टीचर मुझे अच्छे मार्क्स देता है। ऐसा अगर कभी वो अच्छा पेपर नहीं भी गया, वैसे तो देखो पढ़ाई करो अच्छी बात है ना, अपना लर्निंग पे फोकस करो, बट कभी ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो भी जाए, है ना, नहीं तैयारी कर पाई या फिर पेपर अच्छा नहीं गया, कुछ भी सिचुएशन हो, तो उस केस में बस एक अच्छी सी अंदर से ना पॉजिटिविटी रखो, नहीं किसी के पास में फ्री विल नहीं है, ये मेरी लाइफ है, सो मैं डिसाइड करूँगी कि क्या होगा क्या नहीं। तो अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए, और एक ज़िंदगी मिली है, बस उसको मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी ड्रीम लाइफ को कम्प्लीटली मैनिफेस्टेड कर लीजिए। एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको जियो, खुल के जियो।
क्योंकि ये तुम्हें मौका मिला है, परमात्मा ने दिया है, ये जो मौका मिला है इसको प्लीज़ मत गवाओ। और चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से दोबारा आपको कह रही हूँ कि ये काम करती हैं, मैनिफेस्टेशंस काम करती है। मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं मैंने। और मैं हर जगह से ना धक्के खा के मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट किया, कहने का मतलब ये मेरा टाइम इन्वेस्ट किया, एनर्जी लगाई, बट मेरे लिए किसी चीज़ ने काम नहीं किया, किसी भी चीज़ ने काम नहीं किया। लेकिन मेरे लिए इन सब चीज़ों ने, अजम्पशंस ने, मेरे जो थॉट्स है उसने, जब मैंने अपने माइंड को सैचुरेट किया तो इसने मेरे लिए 100% काम किया। मैं ये नहीं कहती कि अगर मैं कह रही तो आप भरोसा कर लीजिए, आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। मैं कि चीज़ें कैसे क्या काम करती है, मैं अपने एक्सपीरियंस, जो मार्केट में जो चीज़ें हो रही है ना, तो मैं उससे आपको अवेयर करवा रही हूँ कि कैसे एस्ट्रोलॉजर है और जो चीज़ें हैं कैसे आपको मतलब लूटते हैं, मिसगाइड करते हैं। सेकंड चीज़, बहुत बार होता है कि हमें अफर्मेशंस के लिए बोल दिया जाता है और हमसे नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी का वेस्टेज हमारे अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, जो भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह चल रहे हैं। तो उस केस में क्या किया जाए, कैसे मतलब चीज़ों को पहले शांत किया जाए, कैसे मैनिफेस्ट किया जाए ताकि ईज़िली चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, मतलब हमारी एनर्जी भी ना लगे और चीज़ें स्मूथली हमारी लाइफ में आ भी जाए, हमें मतलब बहुत ईज़िली चीज़ मिल जाए वो। और अपने माइंड सेट को आप ऐसा ही बनाएं कि मेरे फेवर में चीज़ें काम करती है और हमेशा जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, बहुत ईज़िली मिलता है, बहुत ज़्यादा ईज़िली। मैं इस लाइफ में सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मुझे हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। अपना माइंडसेट इस लेवल का रखिए, सच में ही चीज़ें काम करती हैं। एक बार अपने माइंड को सैचुरेट करके देखिए, किसी भी सिंगल थॉट से कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माई डियर व्यूवर।